Now class, the next will be index of last index of and index of again. So these three are the very important functions because boards में इन three functions से आपके MCQ के भी क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, एज वेल एज मैक्सिमम टाइम ये 3 फंक्शन और ये 2 फंक्शन सबस्ट्रिंग means 3 4 5 6 7. These functions are very important in your program also. You will need to use these 5 functions multiple number of times. इन 5 functions की यूज आपको अपने स्ट्रिंग के प्रोग्राम में भी मैक्सिमम टाइम करनी होगी. So now the first function is index of. Now see, there is a word st. There is a word st. Which is equal to Malayalam. Now I will write here M A L A Y A L A M Malayalam. Okay. Now सी क्लास, कभी भी स्ट्रिंग का प्रेडिक्ट द आउटपुट का क्वेश्चन हो या प्रोग्राम्स आपको सॉल्व करने हो, स्ट्रिंग की वैल्यूज को इस फॉर्म में आप सेपरेट कर लिया करो. इससे क्या होगा कि आप अपने वर्ड्स या कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट बहुत इजीली कर लोगे. मींस बहुत इजीली आप इसे फाइंड आउट कर लोगे कि क्वेश्चन का फंक्शन कौन से कैरेक्टर को पिकअप करने के लिए कह रहा है या कौन से कैरेक्टर को स्किप करने के लिए कह रहा है. We all are knowing there is an index value also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, st dot index of 8. Now you will tell me, is there any character in this string which is equal to a? इस a के जैसा कोई character है इस string में? Yes. This one, this one, this one, and this one. Ab there are 4 characters which is a in this string and function wants to know the index value of a character. अब जब 4 कैरेक्टर आपके a से a करके हैं and function also want to the index of a, so what you will write or what program will write? You will write the program what will give. तो ऐसी कंडीशन में प्रोग्राम उस ए कैरेक्टर की इंडेक्स हमें बताता है जो ए उसे सबसे पहले मिला होता है. इट मींस व्हेन वी स्टार्ट दिस स्पेलिंग मलयालम देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ए. तो इस स्पेलिंग में ये ए क्या कर रहा है, इसे स्टार्ट कर रहा है. आफ्टर एंड देयर इज अ ए. दिस इज अवर फर्स्ट ए. फर्स्ट ए. तो इफ दिस इज अवर फर्स्ट ए, so it will return the index of this a which is equal to 1. Is it clear? Now if I want to know the index of L, there is a 2L in Malayalam. This one is our first and this one is our second. So again it will return the index of first L just like A. So it will return the index of this L which is 2. Is it clear class? It means कि जब भी हम इंडेक्स वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो सबसे पहले हमें उस कैरेक्टर का इंडेक्स देगा जो कैरेक्टर सबसे पहले आया हुआ है. If I want to find the index of y, suppose I will write here st dot index of y. Okay, so if I want to know the index of y,
तो y तो हमारे इस वैल्यू में एक ही जगह आया हुआ है, तो ये इसी y की वैल्यू 4 को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। बट ऐसी कभी कंडीशन होती है जब एक से ज्यादा टाइम हमारा कैरेक्टर आया हुआ है जिसकी इंडेक्स हमें फाइंड करनी है, तो फर्स्ट पोजीशन पे वो जहां आया रहेगा उसी के इंडेक्स को वो प्रिंट कर देगा। इज इट क्लियर क्लास? नाउ द नेक्स्ट थिंग, index of char and. Char and int is there. This is also very important. Suppose there is a string which store a word Canadian. Is it clear? So I will write C A N A D I A अंदर DIAN. Is it clear? Now the word is Canadian. Now here, if I will write int I is equal to, suppose this is equal to st. So st dot index of A. So what it will return? We all are knowing the index of first A, which is 1, so it will return 1. But if I will write int n is equal to st dot index of A comma 4. Now class, keep this thing in your mind. कभी भी स्ट्रिंग के फंक्शन में इन दिस ब्रैकेट इफ देयर इज टू आर्गुमेंट्स, टू पैरामीटर्स आर देयर, कभी भी अगर आपके स्ट्रिंग के फंक्शन में यहां पे एक से ज्यादा पैरामीटर आ रहा है या एक से ज्यादा आर्गुमेंट आ रहा है, तो आपको यहां पे एक चीज ध्यान देना होगा, ऑलवेज द फर्स्ट पैरामीटर इज योर इंडेक्स. व्हाट इज इंडेक्स? एंड the second will be length. What is length? The first argument or the first parameter is our index and the second one will be length. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. अब पहला हमारा क्या है? इंडेक्स है एंड द सेकेंड वन विल बी लेंथ. तो इंडेक्स हमारा कैरेक्टर में है. इज इट क्लियर? तो जब भी इंडेक्स हमारा कैरेक्टर में होगा तो उसे हम स्किप कर देंगे and then we will come to the length. Where we will come? Length. Now in this length, if we will count, so it is index wise, it will start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इंडेक्स के वाइज 0 से लेके 7 तक चलता है, बट लेंथ के वाइज इसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है. ठीक है? So it is 1. You don't need to write here anything. I will just count. According to index, we will start from 1. According to length, we will start from 1, and according to index, we will start from 0. So here this 4 is our length. So we will start from 1. So it is 1, 2, 3, 4. This will become. तो अगर st डॉट इंडेक्स ऑफ a, 4 पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें स्टार्टिंग से फोर्थ इंडेक्स तक की वैल्यूज को स्किप कर देना है. क्या कर देना है? स्किप. और उस फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू के बाद जो भी हमारा पहला ए आ रहा है उसकी इंडेक्स हमें बतानी है. सो इट विल प्रिंट 6. इज इट क्लियर? वी विल टेक वन मोर एग्जांपल. नाउ सी, सपोज there is a variable s which is equal to Malayalam, which is equal to Malayalam. So I will write here M A L A Y A L A M. Again Malayalam is there. Obviously I will write the index value 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. And suppose here I will write S is equal to int n1 is equal to S dot index of a comma 3. Okay, so again the first will be index but character है तो इसे हम skip कर देंगे. Second will be index length wise, so it is 3. तो लेंथ के हिसाब से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया. तो लेंथ तक की वैल्यूज को हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं. जैसे हमने यहाँ 4 तक की वैल्यू को स्किप किया था वैसे ही यहाँ पे 3 तक की वैल्यूज को स्किप कर देंगे. सो इफ व्हेन वी विल स्किप 3 अकॉर्डिंग टू लेंथ, तो यहाँ तक की वैल्यूज हमारी हाइड हो जाएंगी. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, या हाइड हो जाएंगे. अब इस हाइड की हुई वैल्यूज के बाद हमारा पहला कैरेक्टर ए कहां प्रेजेंट है, हियर. सो इट विल रिटर्न 3. इट विल रिटर्न 3. ओके, सपोज करो ये लिखा होता st डॉट इंडेक्स ऑफ a कॉमा 4. बस थोड़ा सा चेंज, ठीक है. 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, 4. तो अब यहां पे हम जो रिमूव करेंगे वो 1, 2, 3, 4 यहां तक की वैल्यूज को रिमूव कर देंगे, मतलब हाइड कर देंगे. और हमें ए के इंडेक्स निकालनी है, तो इस फोर्थ लेंथ वाइज 4 तक की वैल्यूज के बाद जो हमारा पहला ए आ रहा है, ए के यहां है और ए के यहां है, तो ये जो पहला ए आ रहा है इसकी वैल्यू हम 5 यहां पे प्रिंट कर देंगे, इंडेक्स इसके. Is it clear, class? Now the one more thing. Suppose there is a S which is equal to Canadian, which is given here. Let me erase all these things. Okay. See. Now, S is equal to, again, Canadian. It means if I will write I is equal to S dot index of A, so it will return what is 1. Is it clear, class? Now if I will write I1 or maybe I2, I2 is equal to S dot index of Z. Now tell me what is the value, Z की वैल्यू क्या आएगी. Is there any Z here given? No, there is a no Z. So just because of no character present, Z is not present here, it will, in this condition, it will return -1. Okay? So when the specific letter or character is not present in the string, then it will return -1. Okay? Now, this one, it is very easy. Now here you will see the value is now see ST is equal to again we will take Canadian. Okay, or suppose we will take Malayalam, MALAYALAM.
Malayalam is there. Index will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So let's revise the previous things. I is equal to st dot index of A. So it will return 1. Now I1 is equal to st dot index of A, 4. So 1, 2, 3, 4, ये 4 छोड़ करके हमारा A यहाँ आ रहा है, it will be 5. It is very easy. Now I2 is equal to st dot last index of A. अब देखो यहां पे इंडेक्स ऑफ फंक्शन नहीं यूज हुआ है. कौन सा फंक्शन यूज हुआ है? लास्ट इंडेक्स ऑफ. तो इस वेरिएबल की वैल्यू मलयालम के अंदर लास्ट में ए कहां प्रेजेंट है? इट विल बी हियर. सो इट विल प्रिंट द इंडेक्स ऑफ 7. इज इट क्लियर क्लास? इसका सिंपल सा मतलब है व्हेन वी यूज लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन, तो इस फंक्शन की चेकिंग लास्ट से स्टार्ट करता है. मींस इस दिस 8 इंडेक्स है और 8 से एक करके पीछे जाता रहता है. तो जो पहला ए लास्ट से मिल जाएगा उसी को ये प्रिंट कर देगा. इज इट क्लियर क्लास? 3 फंक्शंस आर देयर. इंडेक्स ऑफ विद कैर एंड इंट एंड देन लास्ट इंडेक्स ऑफ. इंडेक्स ऑफ जिस भी पोजीशन पे कैरेक्टर प्रेजेंट होता है सबसे पहले उसके इंडेक्स को रिटर्न करता है. इंडेक्स ऑफ कैर एंड इंट में क्या होता है कि जो सेकेंड आर्गुमेंट है इंट का वो लेंथ वाइज ट्रीट होता है और उतनी लेंथ की वैल्यू को स्किप करके हाइड करके जो कैरेक्टर दिया हुआ है उसके इंडेक्स को वो बताता है. एंड देन लास्ट इंडेक्स ऑफ, सो इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम द लास्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल. इज इट क्लियर क्लास? ओके.